नाउ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीडीएस का पेपर हुआ है 2024 में, राइट, अप्रैल में हुआ है अभी। उसमें ये एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कंडक्ट कराता है? ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, राइट। सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है, राइट। तो यहाँ पे भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे सिविल सर्विसेज में भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। फाइन। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं सीडीएस में मैथ के, राइट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क बाय यूपीएससी इन अवर एग्जाम, राइट, सिविल सर्विसेज एग्जाम, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे। बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम्स में पूछे हैं विच कैन बी आस्क इन अवर एग्जाम। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन आस्क इन CDS 2024. If ABCD, so this is given, then the value of this is asked, right? So this is the question. If you see, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो ये क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं या नेक्स्ट पेज पे, राइट। उनको लगता है ये क्वेश्चन तो उनसे होगा ही नहीं, बट अगर आप इसको 2 मिनट शांति से देखो, राइट, तो आपको ये लगेगा दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट इज गिवन? दे हैव गिवन द रेशियो, राइट। सो दिस इज द रेशियो. If this is the ratio is given, then what will be the value of A? A we can write like 4. We can assume one variable K. B will be like root 3K and C will be root 2K and D will be root 1K. Are you seeing the root 1 is given just to confuse you? So A square will be how much? This will be 4K square. B square will be 3K square. C square will be 2K square and D will be K square, right? अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू हियर. नाउ वी नो A square, we know B square, we know C square, D square, all we have, right? So if we will put the value, we will know in all we will have K square. So from the top we will get the K square and from the bottom also, from the denominator also we will get the K square. So K square will get cancelled. So I am putting K square outside, right? I have taken common. So this is minus A square is 4 plus B square is 3 plus C square is 2 plus D square is 1, right. From here also K square will come common. A square is 4 minus B square is 3 plus C is 2 and what is the value of D is 1, right. So we have to find this, right. So this K square will get cancelled, right. So this is minus 4 and this is plus 4, so here 2 is remaining from the denominator. This is 3 and 1 4, this 4 will get cancelled too, so this is 1. So the answer of this question will be option A, right. तो देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बट इट लुक्स टफ. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन व्हेन यू विल सॉल्व इट, but when you will read it, it will looks very tough, right? The speed of 4 car. So speed is given 2u, 3u, 4u and xu. And the time taken by them to cover the same distance. This is important. The distance is same. So this is speed we are talking about, right? And now time. Time is how much? xt, 4t, 3t and 2t, right? So this is the time. We know that speed is equal to distance upon time, right? Or you can say distance is equal to speed into time, right? So this is the formula we will use, right? So now speed is this, time is this, so distance will be from here, from the first one here, from the first, right? So this is the first. From the first we will get the distance is 2u into xt, right? And from the second, suppose this is the second, right? So from the second the distance will be equal to 3u into 4t. Both distance are same, so we can say 2u into xt is equal to 3u into 4t, right? This u will cut this u, this t will cut this t, right? And this 2 will cut this 4. So x is equal to 6, right? So we have to find what is the value of x. So the value of x is 6.
Now let's see this question. If m and n का रेशियो दिया है, p and q का रेशियो दिया है, then what is the, we have to find the ratio of this, right? So ratio is given, then we can write m is equal to, suppose I am assuming variable a and b, so m will be like a, right? This is m, right? And n will be, this is 2, so this will become 2a. Now p, so this will become, here I am assuming variable b, this will be 3b and q will be 4b, right? So now I will put this value into here, right? So आपने देखा यहाँ पे भी रेशियो का क्वेश्चन आया है, राइट? क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन टफ लगता है, बट दिस इज इजी, राइट? सो दैट्स व्हाई यूपीएससी फोकस ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स, ओके, कि जो देखने में आपको टफ लगते हैं, राइट? बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली. So now the value I am putting here, 2m plus 4p, 2m, m is a plus 4, p is here 3b upon n, n is 2a plus 3, q is 4b, right? So if you see both are same, this is 2a plus 12b, this is 2a plus 12b, so the ratio will be 1:1 because it will get cancelled, right? So the answer will be option A. Now see this question, if the rate of interest is 5%, then what would be the difference between compound interest and simple interest received on rupees 10,000 after 3 years from now, right? So this is from simple and compound interest, and they are asking what will be the difference between simple interest and compound interest. So there is a direct formula for the time period is how much? After 3 years, right? So the formula for that is, if the difference is between CI and SI is given, right? Simple interest and compound interest, right? For 3 years. So there is direct formula. So we will directly use this formula and we will get the answer. So the formula is P R upon 100 square, right? So this is the formula for 2. Now for 3 this will be 3 plus R upon 100, right? So this is the complete formula, right? So now we will just put the value here. So P is 10,000, right? So this will be R square. R is how much here? R is 5, right? So this will be 5 square upon 100 into 100, and this will become 300, this will become 300 plus 5, so this will be 305, right, upon 100, right? So this 0 we will cancel, this 2 more 0 we will cancel from here, right? So this is 5 square, 5 square means 25, 25 will cancel this 100 4 times, so this will be 305 upon 4, right? So you will divide it, so this will go how many times? 7 times, right? 28 to 25, right? So this will go 6 times, 24, okay? So now we know the answer will be this one, 76.25, right? So the answer is option C, okay? So this was direct formula based question. Here we have to just use the formula. This is very standard question actually, right? This type of question asked in many exam, right? Many times, right? So we should know this. Now let's see this question. This question is from profit and loss, right? So a person bought a boat at 3/4 of its listed price. So listed price is like mark price, right? And sold it at 50% more than its listed price. So what is the percentage of gain in the transaction, right? So in this kind of question, we assume some figure. So we will assume the mark price. So mark price normally we will take 100, right? But here we will take 400. Why we will take 400? Just to make the calculation easy, because the cost price here, a person bought, so he is buying a book, so that is the cost price for him. So the cost price is how much? This is 3/4 of mark price. Mark price is, if we will take 100, then the calculation will be a little bit tough. Just to make calculation easy, we are assuming it 400, so that this will get cancelled, right? Like this, okay? So this will be like 300. So the cost price is 300, mark price is 400, right? And he sold, right? Now the selling price, he is selling it at 50% more than its listed price, right? Listed price is like, this is mark price or listed price, right?
So listed price is 400, is taking 50% more. So 400 का 50% is 200. So total selling price is 600, right? So now the question is asking what is the percentage gain in the transaction. So how much gain he is doing? His cost price is 300 and his selling price is 600, right? So there will be, if you will see, this is 100%, right? Because he is buying at 300 and selling at 600, right? So if you will use the formula also, this will be 300 upon 300 into 100, right? So this will be 100% profit, right? So the answer is option D. Okay. Now let's see this question. When the number, this number is given, see this number looks very, आप देखो कितना बड़ा नंबर दिया, देख के डर जाएगा फिर आदमी को लगेगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? देखो इस एग्जाम में पूछा है तो यूपीएससी में भी आ जाएगा, ठीक है? सो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? सो व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, राइट? सो हमें रिमाइंडर बताना है, राइट? सो 60 से इसको डिवाइड करना है, कोई नंबर है उसको हमें 16 से डिवाइड करना है, राइट? तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 16 इज लाइक 2 की पावर 4, राइट? सो इट मींस लास्ट 4 डिजिट वी विल डिवाइड, राइट? तो यहाँ पे देखो ये पूरे नंबर को अपने को देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट को अपने को कंसीडर करना है, राइट? तो लास्ट की 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करेंगे, राइट? सो जो उसका रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करके वही इस पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा, राइट? अगर ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, राइट? अगर इसका कोई रिमाइंडर आएगा तो वही इस पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा, राइट? तो यहाँ पे हमें बस इस नंबर को 16 से डिवाइड करना है, राइट? तो आप इसको डिवाइड करिए, राइट? So this will be like 11, this will be 0, this will go 6 times, this is 96, right? So this will be 14, now 0 will come from the top, right? So this will go now 8 times, right? So this will be, right? So how much we are getting? We are getting 2 and this is 8. So now the remainder is 12. सो इस पूरे नंबर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 12. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, तो आपने देखा तो कैसे अप्रोच करना है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कैन आस्क, राइट? नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन सीडीएस एग्जाम ऑफ 2024. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, राइट? दिस इज वेरी गुड. So what is the smallest natural number n? So we have to find n, and this is important, smallest natural number n such that this is given n plus 1 into n, this, right, is divisible by 910, right? So what they are saying that this thing n plus 1 n, right, and then n minus 1, right? So this will be 3 into 2 into 1. So this will become divisible by 910, right? So we have to find value of n, smallest such number, right? So now first of all what we will do, 910 we will factorize it. So this will be, right, 91 into 10, right? So 91 is 13 into 7, this 10 is like 5 into 2, right? So here we can write 9 10 को कट करके हम ये लिख सकते हैं 13 into 7 into 5 into 2. अब ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो देखो आप इसमें 2 आ रहा है, 2 कट जाएगा, राइट? 5 भी इसमें आएगा, 7 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है? एंड नाउ वी नीड 13, राइट? तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दिस वन, n plus 1, राइट? तो दिस शुड बी इक्वल टू 13, राइट? तो n plus 1 विल बी इक्वल टू 13. जब यहाँ पे n plus 1 13, बिकॉज इस सीरीज में हमें 13 चाहिए, 13 तभी कटेगा, ठीक है? तो या तो इस पे n की वैल्यू या n minus 1 की वैल्यू या कुछ भी, राइट? पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? n plus 1. तो यही हम 13 होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर n को हम 13 लेंगे देन दिस विल बी 14, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, राइट? सो n plus 1 विल बी 13, सो n विल बी 12, राइट? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी. द n शुड बी 12. अगर n हम 12 लेंगे सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 910. किसी नंबर का डिविजिबल है, इससे इसका क्या मतलब है कि जो नीचे की जितनी भी वैल्यूज है ना, दे शुड गेट कैंसल्ड, राइट? तब हम बोल सकते हैं ये नंबर इससे डिविजिबल है, राइट? सपोज करो ऊपर 910 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है? और नीचे 910 है, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है? नीचे कुछ नहीं बचा है,
राइट, देन वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, राइट, वही हम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हो सकता है जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका, तो उनको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस ही आपको अप्लाई करना है, राइट। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, इसलिए हमने n+1 की वैल्यू को इक्वल टू 13 करा है, राइट। क्योंकि अगर हम n की वैल्यू या n-1 की वैल्यू को 13 कर देंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, तो वो नंबर और बड़ा होता जाएगा, राइट। इसलिए जो इसकी मैक्सिमम है, ये जो सीरीज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है n+1, उसी को हमने 13 के इक्वल कर दिया, राइट। सो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। Now let's see this question. This question is from time and work. 50 men can complete a work in 40 days. They begin the work together, but a batch of 5 men left after each period of 10 days. Right? मतलब 10 दिन के बाद 5 लोग कम हो जाते हैं. So what is the time to complete the work? कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, राइट। तो आप देखो वर्क कितना हुआ, टोटल 50 मैन है, दे आर वर्किंग 40 डेज, सो टोटल वर्क इज हाउ मच, टोटल वर्क इज दिस मच, राइट। सो इनिशियल 10 डेज में, फर्स्ट 10 डेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट 10 डेज में 50 मैन वर्क कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज 10, तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ 500, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में हाउ मेनी आर वर्किंग 45, राइट, बिकॉज आफ्टर 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, राइट, तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ 450। उसके नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा, दिस विल बी 40 इंटू 10, कितना वर्क कंप्लीट हुआ 400। अब उसके नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा, दिस विल बी 35 इंटू 10, तो हाउ मेनी वर्क कंप्लीटेड 350, राइट। तो कितना हो गया ये आप देखो 5 एंड 4 900, तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया 800, राइट। सो दिस इज 900 वर्क कंप्लीट हो गया और 800, राइट। कितना वर्क बचा अभी, कितना वर्क कंप्लीट हुआ, तो अभी 10 डेज और लगेंगे, 10 डेज में कितना होगा, राइट, 30 मैन बचे अभी, सो दिस विल बी 300, राइट। तो कितने डेज हो गए 1 2 3 4 5, यानी 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 मीन्स 50, टोटल 50 डेज, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन, ओके। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। So I hope you all guys can do this. Okay. Now let's see this question. This is a wonderful question. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप इसको एकदम छोड़ दोगे क्वेश्चन को, बट दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, राइट। सो इसमें क्या लिखा है, इफ x इज इक्वल टू दिस वन देन which one of the following is correct, right। ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन सेंस से you can answer this, right। So they are saying that x is equal to 1 upon 2 plus something, some value will come here, right। So what is the value of 1 by 2, 1 by 2 is 0.5, if this will be 2 plus 1, suppose this thing is coming 1, then this will become 1 upon 3, then the value will be 0.33, right। So it means the value will be less than 0.5, right? If something will come here, then the total value of x will be less than 0.5, right। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, राइट, प्लस में है, ठीक है, तो वैल्यू इसकी x की कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेस देन 0.5, एंड x की वैल्यू विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर आप देखो x की वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, राइट, x की वैल्यू 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, तो ये कॉमन सेंस से आपको आंसर करना है, इसमें कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, ओके। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। Now let's see this question from the profit and loss. This is the very standard question. The cost price of Y article is equal to the selling price of Z article, right? So selling price upon cost price upon selling price will be equal to, this will be Z article upon Y article, right? So Z upon Y is given 4 upon 5, right? So the cost price is 4 and the selling price is 5, right? So the profit of 1 rupees over 4 rupees, right? So if, तो 100% में कितना होगा, right? So this will be 25. So the percent profit will be, so this is the percentage profit is 25%, right? So the answer is option B. This is the easy question, right?
Now this is a question from simple interest. This is also a very standard type of question. Is sum of money invested at a simple interest triple itself in 8 years, right? So the 100 rupees is getting becoming 300 in how many years? 8 years, right? So the simple interest is 200. So SI is equal to simple interest is equal to P into R into T upon 100, right? So P is 100 rupees. This figure we have assumed, right? So 100 into R, because we have to find R. T we know 100 upon 100, right? So R will be 200 upon 8, right? So this will be 25%. Okay. Now, and it becomes n times in 20 years. So what is the value of n, right? So n ईयर में कितना होगा? एक साल में 25 है, so n years में 20 years में कितना हो जाएगा? This will be 20 into 25, right? So this will be 500, right? The total percentage, right, is 500%, right? So initial amount is 100, right? So 500% of this will be 500. The total amount will become 600, right? So this is the total percentage in 20 years. This is the total percentage, right? So initial amount is 100. Simple interest will be how much? 100 का 500% अगर हम निकालेंगे, so this will be 500 rupees only, right? So we have added this. So this will be the total amount after 20 years, right? So 100 rupee will become 600 rupees, right? So this is how many times? This is 6 times, right? 100 is becoming 600. How many times this is becoming? This is becoming n is 6, right? So the answer is option B. I have seen many students make a mistake, like they consider it, this will be 500. They consider it as 500. So they say n is 5. No, n is, this is the interest, right? So this is asking how many times it will become, right? So this will become 6 times, okay? Now let's see this question. This is a wonderful question. If ABCD are natural number, then how many possible remainders are there when this is divided by 10? This is divided by 10. कोई number divided by 10 अगर पूछा उसका मतलब क्या होता है? That they are asking the unit digit, right? So now here they are asking how many possible remainder are there, right? कितने possible remainders बचेंगे, ठीक है? So ABCD are natural number. So suppose all are 1 initially, right? So what will happen? This will be 1 upon 1 plus 2 upon 1 plus 3 upon 1 plus 4 upon 1. So this will be 7 plus 3, 10, right? So the unit digit is 0. So this is the remainder, right? So one more thing is there. There are two number, 1 plus, you just see here this number, right? This is given. So what will come here, right? What is the unit digit of this? The unit digit of this will be always even, and the unit digit of this one 4 की power d will always be even, right? So here we will get odd 3 की power c, right? Because 3 की power 1 3 will come, 3 की power 2 9 will come, 3 की power 3, right, 27, यानी unit digit is 7, then 1 3971. So all are odd. Here 1 is also odd, right? So when we will add odd plus odd, this one, so we will get even, and when we will add even plus even, we will get even. So now here even. So the final result will always be a even remainder, right? It means the unit digit will be divided by 2. Fine. इसका final result क्या आएगा? Even आएगा, right? Now suppose B is 2. Here I assume all ABCD are 2. 1. Here I am assuming B is 2, all are 1, right? So what will happen? This will be, so we know that there will be even remainder. Even remainders are how many even numbers? 0, 2, 4, 6, 8, right? Then again it will get repeated, right? So these are the total possibility 5. So now we will see कि इसमें कितना possibilities बनेगा. ये तो हमें पता है इस ग्रुप से ही बनेगा, right? Now अगर हम B को 2 रख रहे हैं, then what will happen? A की power 1 plus this will be 4 plus 3 plus 4, right? So this is 7 plus 5, 12, right? So we will get 2.
If we are putting B as 3, then what will happen? This will be 1 plus 6 plus 3 plus 4. Right? A, B, C, D can take any value, but the value will be from this group. Right? Now we are checking all are possible or few are possible. Right? So that's what I am showing you here. Okay. So अगर आप यहाँ पे देखो, what we will get here 7 and this 7, 14. Right? In the next, this will 2 again will increase, then 6, then 8. So total remainder will be all these 5 numbers. Right? So what they are asking how many possible remainders. The possible remainder will be an even number from this group, and we have checked like it will be from all these numbers, right? So total possibilities are 5. So the answer will be option C. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये. यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन in civil services exam also, right? Now see this question. This is also very wonderful question asked in CDS 2024, right? If n is a natural number, so n is a natural number, then what is the sum of all distinct remainder? They are asking the sum of all distinct remainder of this equation when divided by 10 for various value of n. Divided by 10 means what? They are asking the unit digit, right? और 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या होगा? यूनिट डिजिट, राइट? सो दिस इज लाइक 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n. बोल रहा है n की कोई भी वैल्यू हो, राइट? तो जो रिमाइंडर आएगा, जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पे 4 की पावर n, राइट? सो 4 की हम कितनी भी पावर करें आपको पता हो, राइट? तो यहाँ पे या तो 4 की पावर इवन होगी या ऑड होगी, राइट? अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है मतलब स्क्वायर है, या 4 है, 6 है, तो उस केस में क्या होता है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6. अगर 4 की पावर ऑड है यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 4. तो 4 की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, राइट? 6 की वी नो 6 की वैल्यू इज ऑलवेज 6. 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 6. सो 6 की तो वैल्यू फिक्स है 6, राइट? 1 की वैल्यू 11 है यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे अगर देखो 1 है तो 11 की भी कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1, राइट? अब इन द केस ऑफ 9, 9 के भी केस में क्या होगा? इवन और ऑड. 9 के केस में अगर इवन पावर है देन इट विल बी द यूनिट डिजिट इज 1, और 9 के केस में अगर ऑड पावर है देन द यूनिट डिजिट इज 9. ठीक है, तो अब 6 और 11 का तो हमें पता है फिक्स है, राइट? दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 1, तो टोटल दिस विल बी 7, राइट? अब 4 के केस और 9 के केस में देखते हैं. अगर यहाँ पे हम केस लेते हैं इफ दिस इज ऑड, अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, सो व्हाट विल हैपन? 4 की पावर ऑड देन 4 will come, 9 की पावर ऑड देन 9 will come, right? So this is 7 plus 4, 11 plus 19, 11 plus 9, 20, right? So 20 means the unit digit is 0. Now अगर even है, if n is even, then what will happen? ये तो सेम ही रहेगा, 7 ही रहेगा, right? 4 की पावर even, 4 की पावर even means 6 will come, and 9 की पावर even means 1 will come, right? अब कितना हो गया? This is 14, right? 14 means unit digit is 4. So these are the only two possible cases, right? अब उसने हमको क्या पूछा? They are asking the sum. तो sum कितना हो जाएगा? 0 plus 4 यानी 4. So the answer will be option B. देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप एग्जाम में देखोगे आपको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि ये कैसे होगा, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको लगेगा कि एनीबॉडी कैन डू इट, राइट? हु नोज अबाउट यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, राइट? So this is very good question. Now let's see this question from the time and work. A, B, C, D can complete a work in 3, 6, 9 and 12 hours respectively, right? So there are 4 person A, B, C, D, right? A can complete in 3 hours, this is 6, this is 9 and this is 12. Further, only one person can work at a time in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours, right? एक एक घंटे काम करेंगे, राइट? और एक साथ कोई 2 घंटे काम नहीं कर सकता. इट इज नॉट नेसेसरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू एंगेज ऑल. सबको एंगेज करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर? बोल रहा है सबसे कम घंटे कब लगेंगे दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, सो दैट काम फिनिश हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 है, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम इनका आएगा 36, राइट? राइट, इनका एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा. देन इनकी इफिशिएंसी पर आवर की क्या आ जाएगी?
दिस इज 12, दिस इज 6, राइट, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, राइट। तो काम को सबसे कम आवर्स में कराना है, कम सबसे कम आवर्स पे कराना है तो इनसे कराना पड़ेगा क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, राइट, इनकी कम है, इनसे कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो सपोज करते हैं पहले हमने ए को काम पे लगाया तो उसने कितना काम कर लिया, उसने 12 काम कर लिया, टोटल काम अपने पास कितना है 36, राइट। फिर हम किसको एंगेज करेंगे, ए को एंगेज नहीं कर सकते अगले नेक्स्ट आवर में। नेक्स्ट आवर में हमें इसमें से अब तीनों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, 6, दिस वन बी की है, तो बी को करेंगे अलॉट। बी ने कितना काम कर दिया, बी ने 6 काम कर दिया, ठीक है। अब बी को नहीं कर सकते, अब दोबारा से अपने को किसी को करना पड़ेगा, तो अब इनकी एफिशिएंसी इन तीनों में से करना पड़ेगा, 12, 4, 3। तो अगेन फिर ए को कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सबसे कराना है, तो अगेन फिर हम ए को करेंगे, अगेन ए कितना कर देगा, ए फिर 12 कर देगा, ठीक है। अब फिर इन तीनों में से करना पड़ेगा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बी की है, तो अगेन हम बी को करेंगे एंगेज, तो बी ने अगेन इतना कर दिया, तो ये टोटल कितना काम हो गया, दिस इज 12, 12, ये 36 हो गया। तो हमारा काम पूरा हो गया। कितने घंटे हमने अपने को लगे, 1, 2, 3, 4, 4 आवर्स। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। तो अगर आप देखो क्वेश्चन कितना भयंकर लग रहा है पढ़ने में, राइट, बट द आंसर इज सो इजी, राइट। Now let's see this question. This is a wonderful question again asked in CDS 2024, right? So this is the expression is given, right? So this is divisible by which of the following? So we have to find that this expression is divisible by 2, 3 और 37, right? किससे divisible होगा, right? तो देखो आपको बहुत अलर्ट रहना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट यूज करने, राइट। बहुत इजी है, बिना पेन एंड पेपर के आप इसको कर सकते हो, राइट। सो आप देखो पहला नंबर देखो, 555 की पावर 777, राइट। सो ये नंबर कैसा है, ये दिस इज ऑड नंबर। ऑड नंबर की आप कितनी भी पावर करो, राइट। सो व्हाट द रिजल्ट वी विल गेट द रिजल्ट एज ऑड 777। ये भी ऑड नंबर है, इसकी भी आप कितनी भी पावर करो, सो द नंबर विल बी ऑड। अब ऑड और ऑड को अगर हम जोड़ते हैं देन वी विल गेट इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर फाइनल रिजल्ट आएगा, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर जितने भी होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है, राइट। अब आप इस नंबर को देखो अगेन 555 को, राइट, इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो दिस इज 5 + 5 10 + 15, दिस इज डिविजिबल बाय 3। अब उसकी कितनी भी पावर अगर हम करेंगे दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3, राइट। अगर यही नंबर अपने आप में डिविजिबल हो रहा है तो इसकी कितनी भी पावर करेंगे वो भी डिविजिबल होगा 3 से। सो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब ये 7 7 देखो, इसको भी अगर हम ऐड करते हैं डिजिट्स को देन वी आर गेटिंग 21। इट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। और इसकी कितनी भी पावर आप कर लो तब भी वो डिविजिबल होगा 3 से, राइट। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। नाउ आप 37 से देखते हैं। अब 555 को देखते हैं। 555 में अगर आप 5 कॉमन ले लेते हो इससे, सो ये बचेगा 111, राइट। 5 × 111 वी कैन राइट, और 111 को अगर हम और फैक्टराइज करेंगे देन वी विल गेट 3 × 37, राइट। ये 555 को कर रहे हैं अपन, ठीक है। 555 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 111 और इसको और फैक्टराइज किया देन वी विल गेट 5 × 3 × 37। इट मींस दिस नंबर 555 इज डिविजिबल बाय 37, क्योंकि 37 आ रहा है यहाँ पे, 37 कट जाएगा, इट मींस दिस इज डिविजिबल। अब 777 को देखते हैं, राइट। इसमें भी आप 7 × 111 लिख सकते हो अगेन, दिस इज 7 × 3 × अगेन 37। तो इस नंबर के अंदर भी 37 है, सो दिस नंबर विल आल्सो गेट डिविजिबल बाय 37, राइट। और इसकी कितनी भी पावर हो तब भी ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक सिंगल नंबर ही हो रहा है तो उसकी आप कितनी भी पावर करो। अगर मैं आपको बोलता हूँ 555 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि आप इस नंबर को 3 टाइम्स रिपीट कर दो, और क्या मतलब हुआ, राइट। अगर इसमें से एक नंबर 37 से डिविजिबल है तो इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल, राइट। सो ये नंबर भी डिविजिबल है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 भी सही है। तो इट मींस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 37। ये बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, राइट। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, राइट। यूपीएससी इसी टाइप के देखो क्वेश्चन पूछता है, आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। यूपीएससी ने जो सीडीएस में पूछे, क्योंकि ये एग्जाम भी सीडीएस वाला एग्जाम भी यूपीएससी ने कंडक्ट कराया है, और जो हमारे सिविल सर्विस वाले एग्जाम में आते हैं वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो देखो आप क्वेश्चन को देख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या क्या पूछा है। इंटीजर वगैरह मैंने तो देखा है स्टूडेंट्स को, जो इंटीजर या होल नंबर या ऐसा कुछ आ जाता है ना, रियल नंबर, उनको लगता है क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, राइट। बट देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट, इफ दिस इक्वेशन अपॉन m इज नॉट एन इंटीजर, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट इंटीजर, वेयर m एंड n आर इंटीजर। m एंड n क्या है, इंटीजर है, बट
अगर इस एक्सप्रेशन में हम रखते हैं वैल्यू देन हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है, देन n इज नॉट डिविजिबल बाई m, राइट। तो अगर आप देखो इसको अलग अलग अपॉन सबको डिवाइड किया m से, यानी इसको हम अलग अलग m से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। यानी 2m स्क्वायर अपॉन m, दिस विल बी 5m अपॉन m एंड दिस विल बी n अपॉन m। तो यहाँ पे देखिए सब कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा पावर, राइट। बचा ये सिर्फ n अपॉन m, n भी इंटीजर है और m भी इंटीजर है, बट n अपॉन m क्या है, इसकी पूरे की जो वैल्यू आएगी, ये तो सारी इक्वेशंस कट गई है स्टार्टिंग के 3, है ना। ये वाला पद भी कट गया, ये वाला भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये बचा है n अपॉन m। इसका मतलब क्या है कि n इज नॉट डिविजिबल बाई m, राइट। तभी तो होगा ना, इस फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आना चाहिए, उसने बोला इंटीजर नहीं आएगी, अगर ये इससे कट जाएगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी, राइट। ये इससे नहीं कट रहा, तभी हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है। इट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट n इज नॉट डिविजिबल बाई m। अब सेकंड को देखते हैं, ये एक्सप्रेशन दिया है इज डिविजिबल बाई 48 फॉर ऑल होल नंबर, राइट। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज डिविजिबल बाई 48, क्या ये डिविजिबल है 48 से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, और m क्या है, m इज ए होल नंबर। ये बोल रहा है ये 48 से डिविजिबल है, उसने ये दिया। अब अपने को बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। और m क्या है, m इज ए होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो 0 ही रख के देख देते हैं पहले, राइट। सो 8 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे देन 1 आ जाएगा, एंड दिस इज 48। तो दिस इज 6 अपॉन 48। तो 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 48, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया, राइट। ठीक है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। अगर हम 1 रखेंगे देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो 3 इंटू 1, राइट, 2 की पावर 3, सो दिस विल बी 8 फॉर वैल्यू 1, दिस इज करेक्ट, राइट। बट यहाँ पे होल नंबर दिया है, होल नंबर में तो 0 भी आता है, तो 0 से भी होना चाहिए, पर 0 से नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखो यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, राइट। और यहाँ पे सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन, तो आपको अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे देन यू विल गेट ए बेटर आइडिया, राइट। नाउ लेट्स सी this question. This is a very wonderful question from the mixture and alligation. A bottle contains spirit and water in the ratio is 1:4, and another identical bottle contains spirit and water in the ratio 4:1. In what ratio should the mixture in the two bottles be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit to water is 1:3, right? तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, राइट। स्पिरिट देखते हैं, क्योंकि स्पिरिट का अपने को पता करना कि इन दोनों को किस उसमें मिक्स किया जाए कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो 1:3 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिट कितनी है फर्स्ट बॉटल में, है ना, 1:4 के रेशियो में है, राइट। तो स्पिरिट कितना हुआ 1/5, राइट। एंड सेकेंड बॉटल में कितना है स्पिरिट 4:5, फाइन। और फाइनल मिक्सचर में अपने को कितना चाहिए स्पिरिट, दिस इज 1:3 मीन्स 1/4, राइट। तो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4/5 minus 1/4 and this side this will be 1/4 minus 1/5, right। इसका LCM 20 आएगा, then this will be 16 minus 5, right। and here also similarly this will be 20, this will be 5 minus 4, so this will be 11/20 and this is 1/20, right। इसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11:1। द आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। ये इजी क्वेश्चन था, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सी दिस लुक्स वेरी टफ। ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो कैसे होंगे, ये तो और एग्जाम्स में होंगे, बट अगर आप देखो दिस इज वेरी इजी, राइट। तो इसको ये 421/972 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी 1 अपॉन, इसको इसके इक्वल बना रहे हैं, देन दिस विल बी 972/421, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। दोनों को सेम बना रहे हैं। नाउ 972 को 421 से अपन डिवाइड करेंगे, राइट। So this will go how many times, this will go 2 times, this will be 2, this will be 4 and this will be 8, right। So what we are getting 0, this is 3 and this is 1। now 130 को then अब 130 ये नंबर को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी 421, राइट, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, दिस विल बी 2 प्लस, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो अभी अपने पास रिजल्ट आया, राइट। दिस इज लाइक
2 प्लस 130 अपॉन 421, दिस इज लाइक दिस, बट यहाँ पे अगेन ये 1 अपॉन है, इसलिए इसको अगेन हम ऐसे बना लेंगे. सो नाउ दिस नंबर 421 वी विल डिवाइड विद 130, राइट. So this will go how many times? This will go 3 times. So this will be 0. This is 39, right? So what we will get? We will get, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है. So this will be 1, right? This is 12 हो जाएगा, right? 12 में से 9 को माइनस करेंगे, right? So this will be 3, 31. Now 31 से again 130 को डिवाइड करेंगे. This will go 4 times, right? This will be 4, right? 124. So क्या बच रहा है अपने पास? This will be 6. अब 6 से अगेन 31 को डिवाइड करेंगे. दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स? दिस विल गो 30. नाउ क्या बच रहा है? 1, राइट. 1 आ गया अपने पास. अब 1 को अगेन डिवाइड करेंगे. अब जरूरत नहीं डिवाइड करने की क्योंकि डायरेक्टली 1 आ गया है ना. सो दिस वैल्यू वी गॉट, राइट. नाउ सो दिस 2 will be equal to a, this 3 will be equal to b, and this 3 will be equal to 4, and this is d, and this is e, right. अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई ए बी सी डी की, राइट. तो a is 2, b is 3, right, b is 3, c is 4, d is 5, and this is 6, right. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो फैक्टोरियल 5 टाइप हो गया. दिस इज 120 वी नो into 6, so this will be 720. So the answer is option A. Okay. तो ये क्वेश्चन मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है. इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी कैन आस्क, राइट. Now let's see this question. This is also very good question. Let the positive number a1, a2, a3, a3n be in GP, right. So these all number are in GP, right. Geometric progression. If P is the geometric mean of a1 से लेके an तक नंबर है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? देखो अगर दो नंबर है अपने पास, लाइक ए एंड बी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और वी कैन से ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. दिस इज व्हेन देयर आर टू नंबर. अगर 3 नंबर होंगे देन व्हाट विल हैपन? द जीएम विल बी इक्वल टू, दिस विल बी लाइक ए बी की पावर 1/3, राइट. अगर n नंबर होंगे, राइट, और यू कैन से जीएम 3 square is equal to, there are 3 number ABC, like this, and if there are n numbers, यहाँ पे n numbers है, right, so this will be P is equal to A1 से लेके AN तक नंबर है, right, it means this is 1/n, और we can say P की पावर n is equal to A1 into A2, ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे, into AN, right. Now second, NQ is the GM of AN plus 1, AN plus 2, AN plus 1 से लेके 3n तक नंबर जा रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर हो गए? 2n. तो Q इज इक्वल टू AN plus 1 लेंगे एंड मल्टीप्लाई होते जाएंगे एंड कब तक? A 3n. टोटल नंबर कितने हो गए? देखो AN plus 1 से स्टार्ट है, राइट, यानी n नंबर कम है, इसमें n नंबर कम है, टोटल 3n नंबर है, मतलब 2n नंबर है टोटल सीरीज में. सो दिस विल बी 1/2n, और वी कैन से Q की पावर 2n इज इक्वल टू AN plus 1 से लेके लाइक दिस. So now what they are asking? They are asking the GM of 3n numbers. तो टोटल और जितने भी सारे नंबर हैं उनका GM कितना होगा? तो उनका GM कितना होगा? उनका GM होगा A1 से लेके सारे नंबर एंड A3n तक ऑन 1/3n. टोटल 3n नंबर है, राइट. अब A1 से लेके AN तक कितना है अपने को पता है? Pn. और n plus 1 से लेके अपने को पता है कितना है? दिस वन, क्योंकि पावर 2n एंड 1/3n, राइट. अब यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो P की पावर इसको अंदर आ जाएगा, सो दिस विल बी 3n, एंड Q की पावर दिस इज 2n/3n. n से n कट जाएगा, इस n से n कट जाएगा, सो दिस विल बी P की पावर 1/3 एंड Q की पावर 2/3. So this is the GM of all 3 numbers. So the answer is option D. Okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट. Now let's see this question from the time and work, right. If the work done by X man in X plus 1 days is equal to the work done by X plus 5 man in X minus 2 days, then what is the value of X, right. तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन यू नो X मैन X plus 1 डे में कितना काम करेंगे? दिस वन, X into X plus 1, and this work is equal to
द वर्क डन बाई x प्लस 5 मैन, कितने दिन काम कर रहे हैं, x माइनस 2 डेज। तो ये दोनों का दिया हुआ है कि दीज आर इक्वल। तो अब आप इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3x, राइट। माइनस 10 है, ये इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, दिस इज 3x, ये वाला x उधर जाएगा, सो माइनस x, so this will be 2x, x will be 10 upon 2 means 5. So what they are asking, the value of x, so x value is 5, so the answer is option A. ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, राइट। बट यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 5 देख के लोग डर जाते हैं, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज फॉर्म रेशियो, राइट। तो ये एक्सप्रेशन दिया है, तो ये रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो दिस इज गिवन a प्लस बी, दिस इज 5, b प्लस c कितना दिया है 7, एंड c प्लस a कितना हो जाएगा, दिस इज 6। इनको ऐड कर दो, राइट। सो दिस विल बी, देखो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे एक a है, तो 2 हो जाएंगे सब, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, राइट। सो दिस विल बी a प्लस b प्लस c, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, राइट। तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया, दिस विल बी 9। a प्लस b प्लस c 9 हो गया, राइट। a प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, राइट। b प्लस c की वैल्यू 7 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, राइट। c प्लस a की वैल्यू कितनी है 6, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट। अब अपने को क्या निकालना है, a माइनस b प्लस c, a इज 2 माइनस b इज 3 प्लस c इज 4 अपॉन a की वैल्यू, a इज 2 b इज 3 माइनस c की वैल्यू इज 4, राइट। so this is 6 minus 3, so this is 3, and this is 5 minus 4, this is 1, so the answer will be 3:1, so the answer is option C. okay, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इफ p square varies as r, right, it means this is p square is proportional to r, varies as r, and q square varies as r, right. तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी p square is equal to, this is some variable k r, and here also q square is equal to, there will be some variable, so let's take this one k1, this is k2, and this is r, right. then which of the following are correct, तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। p plus q square varies as r, तो p plus q square अगर करेंगे तो what will be the result, so this will be like p square plus q square will be, इनकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे k1, राइट, प्लस k2, इसमें से r कॉमन आ जाएगा दोनों में से, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सम कांस्टेंट, so we can say p square plus q square is proportional to r, right. so first is correct, right. now second देखते हैं, p q varies as r, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p q बोल रहा है, राइट। सो p q is equal to, this will be k1, right, and this will be r भी अंडर रूट में है यहाँ पे, and this will be k2, and यहाँ भी अंडर रूट में r आ जाएगी, राइट। so this will be equal to k1 k2, right, and this will be r, right. so this k1 k2 will be one constant, so we can say this is proportional to r, right. so second is also correct. now let's see third, p square minus q square, right. so this will be, यहाँ पे ये सेम ही था, अगर आप देखें p square minus q square, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ, right. this will also be one constant, right, and this will be r only, so this is also correct, so the answer will be option D, right. तो देखो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन होगा, ये किसी कैटेगरी में नहीं आ सकता क्वेश्चन, राइट, ये कॉमन सेंस है, राइट। बट ये ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बट इट लुक्स वेरी टफ, ओके। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। इफ p number of men can finish a piece of work in q days, right, if there are 50% more men, right, 50% more, initially there are p men, and then we are using the formula here, m1 d1 is equal to m2 d2, right, number of men and days, right. so there are p number of men, and how many days they are taking, q number of days, right. if there are 50% more men, right, so 50% more men means p plus p by 2, right.
देन द वर्क विल बी फिनिश इन 12 days अर्लियर, 12 दिन पहले खत्म हो गया। पहले कितने दिन लग रहे थे क्यू, अभी कितने दिन लगेंगे क्यू माइनस, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट। So this will be, so now how we will solve it, this will be p into q, इसमें से p will common, so this will be 3 by 2 and this is q minus 12, right. This p will get cancelled, right. This will be 2q is equal to 3q minus 36, right. Now this will be 36 here, this will be 3q minus 2q, so q is 36. So what they are asking, they are asking the value of q, so this is 36, means option C. So देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बट हाउ वी आर सॉल्विंग इट, राइट, एंड हाउ द यूपीएससी आस्क क्वेश्चन, राइट, on the time and work, right. So this is very easy question but looks very tricky. Now see this question, this is also very wonderful question. So what is the minimum value, they are asking the minimum value of this, right, for AB greater than 0, right. So here we should know one concept, the concept is, if the expression is given like this, right. So for any value A greater than 0, right, so this value will be minimum when A is 1, right. So this will become 1 plus 1, that is 2, means the minimum value of this expression will be 2, right. इससे कम नहीं होगी, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे, राइट. अगर आप 2 लेते हो देन दिस विल बिकम 2 प्लस 1 बाई 2 यानी 2.5, राइट. अगर 3 लेते हो देन 3 प्लस 1 अपॉन 3, राइट. सो अगर आप पॉइंट्स में भी लोगे तब भी नहीं होगा, राइट. सपोज यहाँ पे आप लेते हो 0.1, so this will be 1 upon 0.1, then this will be 10 here, right. अगर यहाँ से पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, right. So for any value of A, this the minimum value of this expression will be 2, fine. Now they are asking A square plus 3A plus 1 upon A, right. So this will be, इसको separately divide करेंगे like this, so this will be 3A upon A plus 1 upon A. So this A will get cancelled here, this A will cut this, so this will become, this is A, I am taking now this one 1 upon A plus 3, right. So this expression, because they are asking the minimum value of this expression is 2, so this will be 2 plus 3 means 5, right. So इस expression की value 5 आ गई और similarly इस expression की value 5 आ जाएगी, right. So this will be 5 into 5, so this will be 25. So the minimum value of this complete expression will be 25. So the answer is option D. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट. यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कभी भी पूछा जा सकता है, राइट. नाउ सी दिस क्वेश्चन, लेट ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर, विच वन ऑफ ए बी सी डी इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी, राइट. कौन सी वैल्यू ए बी सी डी में से अगर इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नियर होगी, राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, राइट. तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू अपने को नहीं पता है, राइट. तो यहाँ पे हमें डी नहीं पता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम कोई आंसर नहीं दे सकते. सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, सी सबसे छोटा नहीं है, बट और वैल्यूज क्या है वो नहीं पता है, ठीक है. अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, देन सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, इट मीन्स द स्मॉलेस्ट विल बी डी, राइट. और अगर चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट. तो द मल्टीप्लिकेशन विल बी 24, 4 into 3, 12 into 2, 24, right. So this 24 is near to which value? This is near to 4, right. वही तो पूछा है ना, which one of ABCD is closest to the product of ABCD, right. So this question can be answered using both statement, right. So the answer will be option C. Now let's see this question. This question is from speed, time and distance. Two train A and B started from station P and Q respectively towards each other. So there are two stations, right. This is P and Q, right. From here train A is going and this is train B, right, towards each other. So they are moving like this. Train A started at 7 p.m. This is started at 7 p.m. and the speed is 60 km per hour, right. And train B started at 4 a.m. next day. This is next day, right. This is important, the next day, at a speed of 90 km per hour.
The distance between the two station P and Q is, this distance between them is 800 किलोमीटर, राइट। तो ट्रेन ये पहले स्टार्ट हो गई है, कितने आवर्स पहले स्टार्ट हो गई है, ये 7 PM पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ट्रेन बी कब स्टार्ट होगी, 4 AM पे। तो ये कितने घंटे ज़्यादा चली है ये वाली ट्रेन, ट्रेन ए, राइट। ये देखो 5 आवर 12 बजे तक, 7 5 12 एंड 4 बजे तक, ये तो 4 आवर्स, ये टोटल 9 आवर्स दिस ट्रेन चली है, राइट। सो 9 आवर्स तक उसके बाद ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट किया है, राइट। तो 9 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, राइट। सो दैट वी आर यूजिंग ओनली द वन फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस वी आर आस्किंग, स्पीड वी नो इज 60 एंड द आवर्स आर 9, राइट। सो दिस इज 540। तो ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 540 डिस्टेंस कवर कर ली है सुबह 4 बजे तक, जब तक ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट नहीं किया। अब 4 बजे ट्रेन बी स्टार्ट करेगी चलना, राइट। सो नाउ वी विल यूज द रिलेटिव स्पीड फार्मूला बिकॉज बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो डिस्टेंस अभी कितना बचा है, टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 800, 800 में से 540 तो ऑलरेडी कवर हो गया, राइट। तो कितना डिस्टेंस बचा है, दिस इज 260 किलोमीटर, राइट। सो नाउ इन दोनों की स्पीड को कंबाइन कर देंगे, 9 + 6, तो दिस इज 150 स्पीड, डिस्टेंस इज 260। अब इनको कितना टाइम लगेगा, सो टाइम इज इक्वल टू 260 अपॉन 150, so this many hours it will take, right। this is 1 + 1 hour plus 11 upon 15 minutes, right। 11 upon 15 को अपन कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, दिस इज आवर, राइट। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4, सो दिस इज 44। इट मीन्स 1 आवर एंड 44 मिनट्स के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। सो 1 आवर 44 मिनट्स, तो 4 बजे के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टाइम 1 आवर 55 मिनट्स, सो दिस विल बी, oh sorry 44 मिनट्स, सो दिस विल बी 5:44 पे ये लोग मिलेंगे, राइट। ये 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन बी ने कितने बजे चलना स्टार्ट किया, 4 बजे, है ना। और ट्रेन ए भी 4 बजे तक आ चुकी है, तो उसके कितने घंटे बाद ये मिलेंगे, 1 आवर 44 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम यहाँ से आ गया 5:44 मिनट्स पे मिलेंगे। नाउ द वन मोर क्वेश्चन इज, हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द टू ट्रेन्स मीट, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछिए कि ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, क्योंकि क्यू से पूछा है, राइट। तो यहाँ पे आप निकाल ले लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम अपने को पता है, स्पीड पता है 90, है ना, ट्रेन बी की, और द टाइम इन आवर्स इज हाउ मच, दिस वन 26 अपॉन 15, राइट। सो दिस इज 6, दिस इज, so this will be 26 into 6, right। So this will be 156, right। So the answer is option C, okay। So from station Q, right, so from station Q this will be 156 kilometer away they will meet, right। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, राइट। इसका हमने आंसर निकाल लिया, दिस वन, राइट। So this is the second question, at what time will the two train meets, right। So they will meet at 5:40 AM, right। So the answer is option B, okay। Now इसी ट्रेन वाले पे अब this is a third question, if the length of the two train A and B are 400 meter and 500 meter respectively, then what is the time taken by them to cross each other, right। ट्रेन A की स्पीड अपने को पता है 60 किमी थी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और ट्रेन बी की कितनी थी, 90 इंटू 5/18, राइट। या इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो अब इसमें पूछा है कि उनको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस विल बी their total length is 400 plus 500, this is in meter, upon their speed s1 plus s2 because they are moving towards each other, right। So this will be 60 plus 90, right। So this will be 150 into 5/18, right। So this is 900 upon 150 into 5, and the 18 will come this side, right। This 0 will cancel this 0, right। So this will go 3 times, this is 6, now 5 will cancel this, right।
कि यहाँ पे 3 नहीं होगा 5 होगा, राइट। 3 से मैं इसको डिवाइड किया था, राइट। यहाँ पे 6 आया था तो 3 से किया था 5 आएगा, राइट। दिस इज 18 into 6, so this will be 108 upon 5, right. So this will go 2 times, then this 1, right. So 30 will remain, then 6, right. So this will be 21.6 seconds. So the answer is option A. Now let's see this question. The length, breadth and height of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. What is the percentage increase in volume of the cuboid? So volume is length into breadth into height. Let's suppose the initial is 10, because we need percentage, right? So I can take any value. Let the length is 10, breadth is also 10 and the height is also 10. So the volume is 1000. Now the length increased by 10%, so this will become 11. The breadth is increased by 20%, so it will become 12, right. And the height is increased by 50%, so this will become 15, right. So if we will multiply, what we will get? We will get 1980, right. So now what is the difference in the volume? The difference is 980 and the initial volume was 1000 into 100, right. तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है? 98%. So the answer is option C. Now let's see this question. What is the digit at the 100 place of a number? This one. This is a unit digit. Suppose there is a number 2, 3, 4, 7, 9. So this is unit place, this is 10th place and this is 100 place, right. So they are asking this digit, right. So to get this digit, what we have to do? We have to divide the number. To get unit digit, we divide with 10. To get 10th digit, we divide with 100. And to get 100 digit, we will divide with 1000. So we will divide this number with 1000, right. Now to solve this, what we will do? Now this is a remainder question, right. So we will use the concept of remainder here. So I am taking 225 out, right. So how many power is remaining? 38 and this is 1000, right. Now from 25 we can cut this, right. So this will go. Now from 25 we can cut this. Now from 5 we can cut this, not 25, right. This will go 8 times and this will go 20 and 45. So we are having 9 into 45 into 225. This is 225 की power 38 upon 8, right. So now using remainder we can solve this. 9 upon 8, right. So the remainder will be 1. Here the remainder will be 5 and in this the remainder will be 1 की power, right. This will go how many times, right. So the remainder will be 1 here, right. 8 to the 16, right. So this will be 65, 8 8 the 64. So the remainder will be 1. So 1 की power 38 will be 1 only, right. So the remainder here will be 5. But we have divided this number, the denominator, with, right, because we have cut this, right. तो जो हमने सिंप्लीफाई किया उसको हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है रिमाइंडर में, राइट. तो दिस विल बी 125 से इसको सिंप्लीफाई हुआ है अगर आप देखो तो, राइट. 8 आ गया, इट वाज 1000, राइट. सो दिस इज लाइक 8 into 125 इज 1000, फाइन. तो यहाँ पे हमने इसको 125 से सिंप्लीफाई कर दिया, तो लास्ट में रिमाइंडर को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 625. सो आफ्टर dividing this number with 1000 we will get 625. So they are asking the 100 place digit. So 100 place digit is 6. So the answer will be option A. This is a very good question, right. Because यहाँ पे एक तो confusion यही हो सकता है 100 place पे कि कौन सा 100 place वाला होगा and then how we will simplify it. Okay.